Good morning, friends. Today topic is adjective in English grammar. Yes, previous classes or the previous topic we are discussed all about preposition. Throughout the preposition, we are understand from different example and different concept. Now we are such on adjectives. The first question is what is adjective? Can you tell me what is adjective in Hindi or English? Adjective means हिंदी में क्या है? विशेषण. इट मीन्स क्वालिफाइंग वर्ड. क्वालिफाइंग वर्ड. एडजेक्टिव मीन्स क्वालिफायर और क्वालिफाइंग वर्ड. क्या बोल सकते? क्वालिफाइंग वर्ड्स और क्वालिटी शोइंग वर्ड. क्वालिटी और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिविंग वर्ड्स. एडिशनल इंफॉर्मेशन. और अदर डेफिनेशन इज डिफाइन या क्वालिफाई. क्वालिफाई noun and pronoun. There are a lot of definition here. Adjective. The adjective is a qualified word. If anything qualified, it is known as adjective. Adjective means quality showing word. You are good. You are honest. This is what is honest? Honest is your quality. Mahatma Gandhi speaking always truth. The truth is quality. You are telling lie. Lie is quality. You are tall. This is your quality. You are beautiful. This is your quality. Chotu Dadaji small. Yeah, short. There are a lot of video on YouTube available of Chotu Dada. Chotu Dada is a big YouTuber in India. Got it? Know you? Yes, everybody knows Chotu Dada, Amit Vadana. These are famous YouTuber in India. It means the word that is defined quality anything or anybody known as adjective. Suppose I tell you, you are very intelligent. You are very intelligent. Example is you are very intelligent. The word intelligent is here adjective. Adjective. Because the word intelligent is qualifying you. Who is intelligent? To understand this particular sentence, we raise the question. The question is, who is intelligent? You, nobody else. Intelligent, you. It means nobody have intelligent. You are intelligent here. Who is intelligent? The question is, who is intelligent? Who is intelligent? So intelligent, you. You means particular person. Suppose that I told you Emma Mali is beautiful, Aishwarya Rai is beautiful. It means Aishwarya Rai is beautiful. It means it is the quality of Aishwarya Rai. She is beautiful. You is a subject or verb, helping verb. Very, adverb plus intelligent, adjective. Before the adjective, adverb is used, or we can say after adverb, adjective is used.
अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में समझ लो, कोई बात नहीं। सिंपल तरीका है कि जो किसी की विशेषता बताए वो विशेषण है, जो किसी की विशेषता बताए वो विशेषण है। और इंग्लिश में क्या क्या दिया, एडजेक्टिव। नाम अलग है, काम अलग थोड़ी हो जाती है क्या नहीं। अगर कालू है, अगर वो चोरी करता है तो लालू नाम रखने से चोरी बंद थोड़ी करती है। इसका मतलब है किसी की क्वालिटी बताना, किसी के चरित्र को बताना। सारा समझ। एडजेक्टिव मीन्स होता है चरित्र प्रमाण पत्र। जैसे पढ़ेगी स्कूल से बाहर निकलती तो एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, चरित्र प्रमाण पत्र, अच्छा बुरा उत्तम सर्वोत्तम महा उत्तम, है क्या नहीं, या ठीक ठाक। कई को लिखते हैं अनुशासनशील, कई को लिखते हैं गैर अनुशासनशील। इससे फायदा क्या मिलता है, कॉलेज में पता चल जाता है एडमिशन के समय कि किस कैटेगरी में है। इसके साथ टीचर को कैसा व्यवहार करना। लेकिन किताबों से क्या पता चलेगा। कागज के टुकड़े किसी की अच्छाई बुराई को पता करेंगे। अगर वो टीचर के सामने गया, इस्तेमाल करके अच्छे से बोल दिया, पैर छू लिए, नमस्कार कर लिया, तो टीचर को चरित्र बहुत अच्छा, अच्छा नहीं सब सर्वोत्तम है। ठीक है, और मूड खराब था, सप्लीमेंट्री आई थी, चरित्र प्रमाण पत्र दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बाहर देख ले फिर। नहीं, तो सबसे बेकार है कि नहीं। लेकिन उसका दोष क्या है भाई, वो तो सप्लीमेंट्री आ गई इस वजह से गुस्सा में बोल दिया, वरना अपने गुरु की बेइज्जती कौन करना चाहेगा, कोई चाहेगा ऐसा। नहीं, मजबूरी में हो गई या गलती से हो गई, या कह लीजिए कि बचपने की वजह से हुई कि नंबर कम आ गया, गुस्सा घर पे हुई, तो घर पे तो निकल नहीं सकती थी, बाहर निकल गई। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, वो बस ये है कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया उस समय। ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो कई बच्चे देखे बचपन में कितने सारे उद्यमी होते हैं, ऐसा लगता है कि आतंक पैदा कर देंगे, पता नहीं कैसे रहेंगे। लेकिन बाद में देखो कितने सज्जन पैदा होते हैं। कई लोग पहले सज्जन दिखेंगे, बाद में आतंक पैदा कर देते। तो चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र अच्छा हो इसकी निशानी नहीं। जिस प्रकार मार्कशीट में नंबर आने से इंटेलिजेंट की निशानी नहीं है, ठीक है, वैसे ही चरित्र प्रमाण पत्र किसी के चरित्र की निशानी। तो एडजेक्टिव समझे। जैसे क्वेश्चन लिखा हमने एक, यू आर, पहले लिखा हमने यू आर गुड बॉय, यू आर गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। तो आप कैसे लड़के हो, लड़का क्या है, बॉय क्या है लड़का, मतलब बॉय क्या, सबसे पहले ही बताओ, बताओ तो। नाउन नहीं है, नाउन, नाउन है कि नहीं, कौन सी नाउन है। अगर किसी का नाम होता राम श्याम तो क्या देते, कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन। लेकिन बॉय का मतलब ग्रुप है, ग्रुप किस नाउन में होता है, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप में किस में होता है, तो कहेंगे ये कलेक्टिव नाउन में क्या है। पहचान करना भी तो सीखो कौन सी कलेक्टिव नाउन है। गुड, बेड भी तो हो सकता है, टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है कि नहीं, ब्यूटीफुल भी हो सकता है, या फिर अगली भी हो सकता है, UAGLY। अगली का मतलब होता है क्रूड, है कि नहीं। तो गुड का मतलब ये विशेषता बता रहा है, तो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो गया, तो क्या, और इसके पहले क्या है, वर्ब, और उसके पहले सब्जेक्ट। अगर मैं ऐसा बोलूं, यू आर वेरी गुड बॉय, तो वेरी क्या हो गया, एड वर्ब। तो स्ट्रक्चर क्या बना, इसी से निकाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। स्ट्रक्चर समझ में आया, बात समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव हो गया। तो पूरे सेंटेंस में अगर पता लगाना एडजेक्टिव कहाँ है, तो क्या करोगे, नाउन या प्रोनाउन ढूंढो। तो क्या होगा ना, बॉय, बॉय की पहले क्या है, गुड, एडजेक्टिव क्या है, गुड। वैसे भी अच्छा बुरा, काला गोरा, सफेद भूरा, ये क्या है, विशेषता है। काले रंग की गाय, ये विशेषता है गाय की। भूरे रंग की गाय, विशेषता है, क्योंकि गाय तो दूसरे रंग की भी होती। काले रंग की भैंस, विशेषता है, भैंस दूसरे रंग की नहीं होती, काली ही होती। बिल्कुल विशेषता ही है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ ज्यादा ही काली हो, कुछ कम काली।
बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसमें पता करना है, अभी स्टार्टिंग है और पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी तुम्हें पहचानना है कि इस सेंटेंस में किस किस चीज का यूज हुआ पार्ट ऑफ स्पीच में। जैसे मैंने बोला नाइफ, इट इज नाइफ, एक सेंटेंस लगा हमने, इट इज नाइफ, या हमने लगा दिया इट इज अ नाइफ, या एक चाकू है। तो ये क्या होगा? नाउन। और ये क्या होगा? आर्टिकल। ये इन द आर्टिकल ही तो है। इसका मतलब है कि नाउन के पहले क्या आ सकता है? आर्टिकल आ सकता है। इसका मतलब हुआ था नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। अब हम एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों को मिला रहे हैं। आ रहा समझ में? फिर बताना कि पहले एडजेक्टिव आएगा कि पहले आर्टिकल। समझ में आ गई? पहले स्ट्रक्चर से ही समझ में आएगा, तब ना पता चला होगा एरर कहाँ है सेंटेंस में। अगर हम किसको मिलाएं, इन दोनों के स्ट्रक्चर को, क्या? एडजेक्टिव प्लस नाउन, और दूसरा क्या था हमारे पास? एडजेक्टिव प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, दोनों को मिला दिया हमने। किस किस को? एडजेक्टिव और आर्टिकल को। देखो, इट इज आ गुड, गुड की जगह दूसरा शब्द लिखो, गुड। गुड में उसमें क्या होगा? उसमें कैसा होता है चाकू? कहना होता है। इट इज अ शार्प नाइफ। शार्प का मतलब तीव्र, कहना, धारदार। तो इट इज अ शार्प नाइफ। नाइफ क्या है? नाउन है। शार्प धारदार है। धार क्या है? विशेषता है। क्योंकि लोहा तो हर जगह दिखेगा, लेकिन हर लोहा धारदार नहीं होता। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, फिर क्या है? आर्टिकल है। इसका मतलब तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? जब तीनों चीज एक साथ आ जाएं, तो पहले लास्ट से अगर करें तो नाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल। इसका मतलब है कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है, और आर्टिकल के बाद नाउन या फिर प्रोनाउन। अभी और आगे बढ़ाते हैं। अब इसे में क्या ले लेते हैं हम? एडवर्ब भी। तो एट इज, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा, इंग्लिश को तोड़ने मरोड़ने का गढ़ की तरह। इट इज अ वेरी शार्प नाइफ। इट इज वेरी शार्प नाइफ। चाकू तो है, लेकिन कैसा? बहुत ज्यादा धारदार, अंगुली पड़ गई तो आर पार हो जाएगी, कट जाएगी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी आर पार, महाराणा प्रताप जैसे। बहलोल लोधी को हल्दी घाटी की युद्ध में घोड़ा समेत दो भागों में काट डाला। हाँ, यूट्यूब पे देखना, वीडियो डले। क्योंकि उनने उनके दामाद, उनके जीजा को मार दिया था बहलोल लोधी ने। उनकी बहन विधवा हो गई थी, जिसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। तो अगर ऐसा किसी के भाई के सामने हो रहा है, उसकी बहन विधवा की, तो गुस्सा तो आ ही जाएगा। उसने कहा हम तो मर ही रहे। और जो व्यक्ति गुस्सा में आता है, उसके लिए क्या एक भाग, कैसे चार भाग, है कि नहीं? कैसी गाजर मूली जैसा इंसान, है कि नहीं? क्योंकि उसने तो अपना सब कुछ खो ही दिया। तो गुस्सा में आए तो सबको छोड़ छाड़ के उन्होंने, वैसे मार तो रहे थे मान सिंह को, लेकिन मान सिंह को भाला फेंका तो बच गया मान सिंह, नहीं तो मान सिंह न पट जाते। तो मान सिंह बचे तो किस पे? बहलोल लोधी असर आता ज्यादा। तो मान सिंह पे दोबारा प्रहार होने वाला था। तो मान सिंह क्या जानता था? महाराणा प्रताप बहुत गुस्से वाला आदमी। तो वो तो हो गया शांत, लेकिन जी मजे लेता रहा। मुसलमान है, वैसे भी बात कम ही समझ में आती है कि नहीं? मजे ले रहा था, बोले आज तो मार के ही जाएंगे इसे। तो उसने खूब कहा भाग भाग भाग, नहीं भागा, घोड़ा समेत, मतलब बहलोल लोधी को बीच से काट दिया, और घोड़ा भी कट गया। इतना कर्रा प्रहार किया, और ऊपर जो लगा रहता है हेलमेट, सब कट गया। दुधारी तलवार थी, दुधारी तलवार। उनकी तलवार दो धारी होती थी हमेशा। हाँ, इसलिए वो तीव्र थी। बोले सुने मेरा माँ, बोलते हैं, गाना नहीं सुना? मेरो माँ मारवाड़ी सरदार जा की दो धारी तलवार, नीला घोड़ा रहा सवार, राणा जी जा जो जी। ये राजस्थानी भाषा है।
समझ नहीं आती, कोई बात नहीं। इट इज वेरी शार्प नाइफ, तो ये क्या है, नाउन। तो गाना ऐसे बोल देना अगर सुनना है तो, मुझे तो अच्छा लगता है। नीला घोड़ा रा असवार, जा पे दो तलवार, दो धारी तलवार, मारो, मेरो नहीं, राजस्थानी मारो बोला तो मारो, मेवाड़ी सरदार राणा जाजो जी, ये है राजस्थानी भाषा। गौर से सुनोगे तो भाषा समझ में आती है। लोग तो उड़िया और गुजराती सीख लेते हैं, ये तो राजस्थानी है। नाउन, ये क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, एडवर्ब, एडी भी लिखते हैं, ये क्या है, आर्टिकल, ऐसे ये तो कॉमन रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो स्ट्रक्चर क्या बना, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। यहाँ पर तुम्हें तीन स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। एक स्ट्रक्चर ये है, और दूसरा स्ट्रक्चर ये, तीसरा स्ट्रक्चर। इन सबसे लास्ट वाला स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि सारे दोनों स्ट्रक्चर उसी में शामिल है। इतना सा निकाल लो तो ये बन जाएगा, इतना सा निकाल लो तो ये बन जाएगा, पूरा कर दो तो ये। बात समझ में आई कि नहीं। तो एडजेक्टिव समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर विशेषता बता रहा है, कैसे, यहाँ पर क्या विशेषता थी कि चाकू थे लेकिन धारदार है। कितने चाकू हैं, एक चाकू है। यहाँ पे चाकू कैसा है, धारदार है, लेकिन धारदार ही नहीं बल्कि बहुत धारदार है। हो सकता है दो धारी हो, डबल तरफ, मतलब दोनों साइड धार हो। चाकू भी होते तो धारी, देखिए चोर बाजार में मिलती है नाइफ। हर बड़े शहर में चोर बाजार मिलेगा, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई, चोर बाजार जरूर मिलेगा। तो चोर बाजार में अच्छा सामान आधे रुपए में। ग्वालियर कसम सड़ी है बड़ी नाइफ। ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में नहीं, आज नहीं देख रहा जहाँ वैसे आदमी चोर के बाप बैठे चोर चोर बराबर हैं, रात में भी चोरी करके लाया फिर ये चोर उठा लेंगे। ये लोग ऐसे चोर नहीं है कि रात में नहीं में लूट लेंगे, रात है कि नहीं। चंबल में ऐसी दुर्घटना नहीं होती, समझ में आई, क्योंकि ये डाकुओं का इलाका है, या कह लो कि बागियों का इलाका है। तो चोर बड़ा कि बागी, चोर चोरी करता है, बागी चोरी के बदले में नटा भी देता। चोरी तो कभी नहीं करता है, लूटता है वो। देखो चोर क्या करता है, चोर करा तो आंखों के पीछे, मतलब समझ रहा है, पीठ पीछे, और बागी करता है सामने ही। तो बागी और चोर में अंतर है, बागी वफादार होता है और चोर गद्दार। बागी हर किसी से थोड़ी बोलता है कि नहीं। पहले बागी रहती तो लोग भी तो रहते थे, लेकिन चोर किसी को छोड़ता नहीं। कहते हैं कि चोर चोरी करके ईमानदारी से बंटवारा करता है सोचो, ईमानदारी सब में मिलेगी तो चोर भी ईमानदार है। घंटा चोरी कर ले जाता तो 20 रुपये चढ़ावा प्रसाद भी चढ़ा जाता मंदिर, देख लीजिए एडजस्ट हो जाए, 80 रुपये की तो बात है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्या थी, चाकू की विशेषता थी। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, जो विशेषता बताए वो क्या है। एक एक सेंटेंस पर लिख रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। मैंने बोला दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ। नाउन कौन है इसमें, जल्दी जल्दी बताओ। काउ, ये क्या है, आर्टिकल। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब मैंने बोला इसी सेंटेंस को, दिस इज अ ब्लैक काउ, तो क्या होगा, नाउन। ये कलर है क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, आर्टिकल। हो गया कि नहीं। इसका मतलब नाउन की विशेषता है कि, गाय की विशेषता की वो काली है। गाय की क्या है विशेषता है कि वो काली है। अगर हम सेंटेंस बोले क्या, दिस इज अ ब्लैक काउ दैट गिव्स अस मिल्क। सेंटेंस थोड़ा बढ़ा दिया, काउ दोबारा नहीं लिखा हमने, दैट लगा दिया तो सब्जेक्ट बनना क्या सा होता, दिस इज अ ब्लैक काउ, काउ गिव्स अस मिल्क। आ रहा समझ में। दैट लगाने से हमने काउ की रिपीटेशन को
हटा दिया तो क्या बन रहा? दिस इज अ ब्लैक काउ दैट गिव्स अस मिल्क। इसका मतलब एक काली गाय जो हमें दूध देती है। इसका मतलब डबल विशेषता है, एक तो काली है, दूसरी दूध भी देती है कि नहीं? हर गाय दूध थोड़ी देती है, हर समय दूध नहीं देती, ऐसे कह लो, है कि नहीं? एक समय होता तभी दूध मिलता। तो एडजेक्टिव समझ में आ गया। इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? ब्लैक। अब तो डायरेक्ट, अब तो ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट समझ जाओगे। इसमें आर्टिकल, इसमें कहाँ गया सार, इसमें, अब तो पहचान समझ में आ गई। तो अब एडजेक्टिव की क्या होता है? डिग्री होती है। एडजेक्टिव की क्या होता है? डिग्री होती है। एडजेक्टिव पे टाइप भी होते हैं। तो टाइप जैसे कि हमने प्रोनाउन में पढ़े थे कि नहीं? इंटेरो सॉरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसे ही एडजेक्टिव के भी प्रकार होते हैं, है कि नहीं? लेकिन वहां पे हम प्रकार नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे? एडजेक्टिव का यूज करना सीखेंगे। प्रकार पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। प्रकार में क्या होता है? डेफिनेशन लिखो, लेकिन क्वेश्चन डेफिनेशन से तो आते नहीं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? प्रैक्टिस से। तो हम क्या करेंगे? कंसेप्ट और उसकी प्रैक्टिस, बजाय कि ये टाइप वो टाइप 50 टाइप। टाइप से क्या मतलब? पूछेंगे कितने टाइप के होते? नहीं, इसलिए हम वही पढ़ेंगे जो पूछे जाते हैं। जैसे एडजेक्टिव है सो डॉट 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 दैट, है कि नहीं? सो दैट डॉट दैट का मतलब होता है ताकि। बता रहा हम कैसे पढ़ेंगे, तुम्हें समझ में आता है? दो तरीके के टाइप बताओ। टाइप में बकवास है, इसमें यूज होगा, ये कई बार आता है सो दैट दैट दैट। कहेंगे जैसे एक एग्जाम्पल लिखा, मिल्क इज सो सो हॉट दैट आई कांट टेक इट। आई कांट टेक इट। मिल्क इज सो हॉट दैट आई कांट टेक इट। ड्रिंक नहीं लगाएंगे, टेक लगाएंगे। शराब पीने को ड्रिंक बोलते हैं, अच्छी चीज पीने को टेक बोलते हैं। टेक का मतलब लेना, पहले हाथ में लेते हैं फिर पीते हैं। शराब बोतल उठाते हैं चढ़ा जाते हैं। आरा समझ, चाय लेते हैं पीते हैं, दूध पी लेते हैं धीरे धीरे टेस्ट करके पीते हैं, शक्कर डाल के, चीनी डाल के। और आप कोई गिलास में पी रहा है, इसका मतलब नया खिलाड़ी हो। समझ रहे? किस चीज का? शराब पीने का। पुराने खिलाड़ी गिलास में नहीं डालते हैं, ढक्कन खोल के चढ़ा जाते हैं। तो इसलिए ड्रिंक चीज अलग है। आजकल क्या हो रहा है ट्रेंड में? ड्रिंक बोलो तो भी वही है, टेक बोलो वो भी वही है। पानी पी रहा है तो भी स्वाद नहीं कैसे पीना है, शरबत पी रहा है, पेप्सी पी रहा है, तो वो तरीका एक ही है। इसलिए आजकल क्या करते हैं लोग? ये ड्रिंक ही यूज लगा देते हैं हर जगह, लेकिन ये सही नहीं है। तुम भी लगा दोगे तो अर्थ तो निकल आएगा। लेकिन यदि कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक, आ रहा समझ में? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का मतलब ये होता है कि ढक्कन खोलो मुंह से लगा के पी जाओ। अगर गिलास में लेके पी रहा तो वो कोल्ड ड्रिंक नहीं हुई, वो टेक ड्रिंक हुई। तुमने ली, गिलास में डाली, फिर टेक। आ रहा समझ में? कोल्ड ड्रिंक उठता होती डायरेक्ट लिया खोला और चढ़ा गए। इसलिए देखा ऋतिक रोशन क्या करता है? माउंटेन ड्यू का प्रचार करता है, देखने से फर्क पड़ता है। थम्स अप का प्रचार करता है सलमान खान। मैं बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत यूट्यूब चलाता हूँ, तो प्रचार को भी कभी कभी 5 सेकंड आता है, 5 सेकंड में देख लेते, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन तो क्या करता है थम्स अप के प्रचार में सलमान खान? एक तो टी शर्ट वो पहना रहा तो बनियान बढ़िया सी, और बॉडी दिखा तो उठाते और पी जाता कि नहीं? डायरेक्ट पीता, गिलास में नहीं डालता। इसलिए कोल्ड के साथ क्या लग रहा है? ड्रिंक। इसलिए कहते कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। लेकिन अब कोल्ड ड्रिंक तब मानी जाएगी, अब 4 लोग हैं, एक एक ले आओ और चारों पीने में लगे, एक में 4 है तो टेक कोल्ड, सारा समझ, टेक ड्रिंक होगी। तो फिर उस पेप्सी का नाम लिखो। जैसे कि अगर आपको लिखना है आई वांट टू टेक पेप्सी, या फिर लिख दो ड्यू। ड्यू लिखे, माउंटेन ड्यू पूरा नाम है, एमटी माउंटेन। ड्यू माउंटेन का मतलब पर्वत, ड्यू का मतलब उसकी बूंद है।
इसका मतलब पर्वत पे रखी हूँ उसकी मुंह। माउंटेन ड्यू इसलिए तो ऊपर से नीचे आता दौड़ते दौड़ते। ऐसे नाम थोड़ी रखा जाता, हमें नाम नहीं पता तो क्या इसका मतलब कोई अर्थ नहीं होगा है क्या नहीं। ये मालूम है, एक बात बताएंगे, एप्पल का निशान है ऐसा, कैसा ऐसा ही है। हाँ, तो बीच में थोड़ा कटा है, क्यों कटा बता। इधर कटा है, इधर कटा हुआ है। हाँ, इधर कटा है कहीं ना कहीं साइड मान लो, चांस कटा है, क्यों कटा है बताओ। एप्पल संस्थापक कौन है एप्पल का, बता। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, चलाते हो तो पता भी तो होना चाहिए कौन है। मार्क जुकरबर्ग। और इसके एप्पल के स्टीव जॉब। आ रहा समझ में। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। तो स्टीव जॉब क्या भारत में आए थे, बहुत परेशान थे, नौकरी वोकरी नहीं लग रही थी, धंधा पानी नहीं चल रहा था। तो यहाँ क्या बाबाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव है, संतों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो एक जगह कोठी पे गया, संत महात्मा बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। हकीकत बात है, मजाक की बात नहीं, बहुत सही है। भारत के लोग बाबाओं पर विश्वास करें या ना करें, विदेश के लोग फैन है भारत के बाबाओं के। अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ लोग किसके फैन है, हीरो है, हीरोन है। ये ऐसे कपड़ा पहने हुआ जिस सबका जो दिखा रहा हो तो लोग पागल हो जाए, फोटो प्लीज सेल्फी। देखिए यूट्यूब पे वीडियो, सेल्फी सेल्फी, मैडम जा रही चली जाते चुपचाप। ठीक है नहीं, पागलपन की हद हो रही, कोई गरीब है खाना नहीं मिल रहा उसकी फोटो नहीं डालेंगे। बात समझ में आई। विदेश में ऐसा नहीं है, विदेश में जैसा हम वैसे, क्या हीरो ने क्या, लेकिन वहां ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ इन चीजों से आगे निकल चुके हैं लोग, बहुत लोग जो है बहुत आगे निकल चुके हैं। अब नई नई चीजें सीखते हैं, हिमालय पे चढ़ते हैं, नदी में तैरते हैं, एडवेंचरस करते हैं, आ रहा समझ, वैज्ञानिक खोजें करते हैं। है कि नहीं, अपने यहाँ 100 साल पीछे चल रहे रीजन से, है कि नहीं। अब रंगीन दुनिया में भूले, क्योंकि अंग्रेज ये काम करके छोड़ चुके। बात समझ में आई। इसलिए यहाँ के लोगों में तनाव नहीं है, भारत के लोगों में, वहाँ के लोग तनाव में रहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ करें तो अपना तनाव होगा, देखते हैं देखा ही कि खुश है। तो स्टीव जॉब भारत में आए तो क्या होगा, उनके साथ ये होगा कि संत महात्मा के पास गए, पेट छुए, बताई अपनी समस्या। तो वे एप्पल खा रहे थे उस समय। तो एक उन्होंने खाया ही था, बोले ये एप्पल ले जाओ, इस एप्पल को खा लेना पूजा करके, है कि नहीं, तो यहाँ पर रख लेना। समझ में आई। तो वे अपने यहाँ आए, पूजा करी बाकायदा उनने, और वहां पे एप्पल रखा। और उसी दिन से उनका व्यापार अच्छे से चलने लगा, इसलिए उन्होंने अपने व्यापार का सिंबल बनाया क्या, एप्पल। समझ में आई। ये एप्पल का रहस्य। और लोग आज पागल हैं एप्पल के पीछे, एप्पल का मान लो, लड़के तो कम, लड़की ज्यादा आईफोन लेने। लेकिन पता तो ऐसा ही है कि आईफोन बना कैसे। आईफोन एक दुर्घटना का शिकार हुआ है, नहीं तो पूरा आ जाता हो। कोई खा रहा था और किसी को मिल गया जूठन, और जिसके पीछे लोग दीवाने। वैसे भी जूठन की तो भारत में बहुत दीवाने होते, महाराज खारा बोल जाई मैं से नहीं दे दो चरण क्या मरा। अच्छो खाओ काय को जूठो खारा, बीमारी और फैल। और समझ, कोई कार्यक्रम हो रहा देवता पे चढ़ाएंगे वही के जूठो सबको खा दें, और बोलेंगे कि चरण अमृत है। चढ़ को अमृत क्यों पीने भाई, धुले धुलाए चरण का पीना तो अच्छा पियो, हाथ से भरा भरा पानी पी लो भगवान के। नहीं लग रहा भाई, अजीब बात नहीं लग रही, चरण अमृत, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आई चरण अमृत कैसे हो गया। धुगला उगला सब आ जाएगी उसमें, हाथ से भर के फवा दो तो मान सकते हैं कि अमृत है, नीचे गंदगी नहीं गई। ये इमोशनल है। हमारे यहाँ क्या है कि लोग गुलाम रहे 200 सालों तक अंग्रेजों के, 400 सालों तक मुसलमानों के, है कि नहीं। तो बात समझ में आई। इसीलिए क्या होगा कि आदत पड़ गई पैरों में बैठने की। पहले क्या होता, राजा महाराजा बैठे, कुआ गरीब तो पैरों में बैठ रहो, तो माफ कर दो माफ कर दो, गलती हुई, गलती का छुनी भाई। तो बस राजा ने रानी निकल रही तो देख लिया, है कि नहीं, आंख निकलवा दी। राजा को बच्चा शिकार करने जा रहा था, ये भी शिकार कर रहा था, तो इसके हाथ से उसके उसके शरीर में कहीं भी लग गई, हाथ कटवा दिया। तो आके सीधे पैरों में गिर जाता था कि माफ कर दो तो ठीक है। तो वही आदत पड़ गई कि कहीं भगवान दंडित ना कर दे, पैरान में जाओ सीधे। तो बड़ो आदमी छोटे आदमी देखो ऊपर नहीं बैठे नीचे बैठे, क्यों, ऐसा नहीं वो नीचे बैठना चाहता,
उसके दिमाग में ये भरा है पहले ही से सारा समझ, वर्षों की गुलामी के कारण क्या है, भरा है। तुमने देखा होगा घर का कोई बड़ा आ रहा तो नीचे, छोटा जाके चुटकू नीचे बैठ जाए। और बड़े आदमी क्या बोले, सम्मान की बात होती, कोई बड़ा आए खड़ा हो जा, सम्मान की बात नहीं, अगर वे खड़े रहेंगे तो उनकी बेइज्जती जरूर हो जाएगी, तुम्हारा भी सम्मान कहीं नहीं जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि उन्हें आदत है शासन करने की, भाई उन्हें अच्छा लगेगा, भाई हम बड़े बैठे जी नीचे बैठो, देखो लग रहा कि हैं ठीक ठाक है। इसे बोलते हैं आधिपत्य का संकट, यानी अपने आप को ताकतवर दिखाने का संकट। वरना उल्टा नहीं होना चाहिए कि भाई बच्चा है वो ज्यादा समय तक खड़ा नहीं हो सकता, तो बड़ा खड़ा रहेगा तो अच्छी बात है, बच्चे को बैठते ही रहना चाहिए। और लोग क्या उल्टा कर देते, बोले बच्चा है, तू तो खड़ा हो जा, बड़े को बैठ रहे। उल्टा नहीं हो रहा, बड़ा छोटा बीमार भी तो हो सकता है, खड़ा रहेगा, लेकिन अगर वो खड़ा रहेगा बड़ा, उसकी बेइज्जती नहीं होगी फिर। इसलिए क्या है जी, बड़े बुद्धिमानी तरीके से, मतलब बड़ी होशियारी से खराब चीजों को अच्छा बना दिया गया, मालूम है? बड़ी बुद्धिमानी से खराब चीजों को अच्छा बना दिया गया। जैसे एक बार अम्बेडकर के साथ क्या होगा, पानी पीते थे वो, एक तालाब तालाब ही था उस गांव में जहाँ वो रहते थे, इंदौर में मऊ जगह पे रहते थे। वहां पर दिक्कत क्या थी, पानी पीने के लिए बहुत ज्यादा तालाब नहीं थे। एक अच्छा तालाब था, उसमें थोड़ा पीने लायक पानी था, एक था उसमें गंदा भैंस है, नहाने भाने मतलब ऐसा पानी। तो एक बार गलती से उन्होंने पी लिया, क्योंकि पढ़े लिख के आए थे लंदन से, उन्हें लग रहा था कि हम बहुत कुछ बदल डालेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, बहुत सारे ब्राह्मण दूसरे लोग आ गए जाते, उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे पी लिया, भाई कुएं का पानी ऐसे कैसे पी लिया बिना पूछे। और उन्होंने उसकी शुद्धिकरण करवाया, पूजा पाठ करवाया। ये नहीं माने, दो चार लोगों को लेकर फिर चले गए, फिर उन्होंने लाठी चार्ज करो मार रही। उसी दिन से उन्होंने प्रण ले लिया कि अब चाहे जान चली जाए, पानी पीने का हक तो हम सबको दिलवा के रहेंगे। और फिर उन्होंने महार आंदोलन चलाया। महार आंदोलन दरअसल अम्बेडकर का जाति व्यवस्था के खिलाफ एक समानता मूलक आंदोलन था। और फिर अंग्रेजों को मजबूरन सबको अधिकार देना पड़ा कि जाति के आधार पर कोई व्यक्ति किसी भी जगह जैसे, जैसे आने जाने मंदिर में जाना है से रोक नहीं सकता। पहले जिन लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, बात समझ में आ रही, मंदिर के बाहर से पूजा करो। इसका एक उदाहरण है आज कि महिलाएं क्या करती हैं। अगर तुम्हें मतलब अगर ज्यादा आस्था हो तो बुरी मत मानना, मैं तो हकीकत बताता हूँ, भगवान नाराज हो जाए तो उनकी समस्या हमारी है कि नहीं। हम तो हकीकत बताते हैं, हमारा काम है टीचर है तो पढ़ाना, हकीकत बताएंगे। पहले क्या होता था, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होते थे, तो जो जनरल कैटेगरी क्या कह लो कि समाज में रुतबेदार लोग थे, कहते थे मंदिर पे नहीं, बाहर खड़े ही रहो, वहीं से पूजा करो, वहीं प्रसाद ले लो, वहीं से निकल लो। आ रहा समझ में? जैसे आज लोग कहते हैं कि भाई मैं तो मंदिर अंदर पे नहीं चढ़ो, गंदगी फैल जाए, जरबात वही से। आ रहा समझ, साफ सफाई वही से करे हुए और खुद बैठे, और भाई पवित्र कैसे होगा, जा रहा तो वही नहीं। ये समझ रहा है? कितनी बेवकूफी भरी चीजें हैं। नेट खत्म हो गया। तो बात समझ में आई? तो बात सिंपल सी थी, क्या थी बात, कि उन लोगों को अपने आप को ताकतवर और उन्हें कमजोर दिखाने के लिए लोगों ने हथकंडा बनाया। बात समझ में आई? आज कैसे, आज नहीं चल रहा भाई, आज संविधान लागू है। अरे कहीं था वही था, छोड़ो, कहीं था में चल रहा है, यहाँ देखो अपने काम। बात समझ में आई? कहीं था में चल रहा तो पुलिस को खबर दो, सब भूल जाएंगे। तो आज कैसे चल रहा है, आज कानूनी रूप से नहीं, लेकिन आदर्श रूप से हम जो बता रहे हैं तो मान जाओगे कि वही चल रहा है। हनुमान जी की देखी तुमने, जो मान लो हनुमान जी को मंदिर है, जय मूर्ति रखी है, ये सामने है, महिलाएं आएंगी इधर से, शंकर जी को मंदिर है, जबकि साला यहाँ जाएंगी इधर से इधर, और इधर से गायब, सामने नहीं आएंगी। क्यों? हनुमान जी के मंदिर पे मतलब गई तो है, लेकिन सामने नहीं है, ऐसा क्यों? लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जो महिला आती सामने पूजा करती तभी तो माना जाता बराबरी का अधिकार है, पुरुष भी पूजा कर रहा, महिला भी पूजा करती, बच्चियां कैसे चली जाती? हाँ, कर रहा जीन्स पहन के। बात समझ में आई? देखो, तो ये बकवास कहना बंद करो कि ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा।
ऐसा ब्रह्मचर्य किस काम का जो किसी के सामने आने से खंडित हो जाए। है कि नहीं? ब्रह्मचर्य तो तब है जहाँ बिल्कुल गोरी मोड़ी आ जाए एकदम सुंदर, भगवान जी तभी शांत बैठे रहे। तभी तो माना जाएगा सही ब्रह्मचर्य है। तो इसका मतलब कोई भी जाए कोई फर्क ना पड़े, भगवान को कैसे फर्क पड़ेगा, वो तो मूर्ति है। समझ में नहीं रही है कि नहीं पागलपंथी? भाई वो तो मूर्ति है, उसे क्या फर्क पड़ेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य डगमग थोड़ी होगा, आ जाने तो किसी को भी पूजा करने दो। तो कहते नहीं आगे नहीं पीछे, अरे आगे से आगे से हो सका तो पीछे से हो सका। है कि नहीं? पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो ये क्या है, ये समाज के लोगों ने जानबूझ के बनाया, जानबूझ के बनाया है, ताकि पुरुष को लगे कि हम ताकतवर हैं भाई, हम आगे से पूजा करेंगे, तुम पीछे से करो। समझ में आई? किसी को पता नहीं क्यों होता, समझ में? लेकिन ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी है जो समाज में चल रही है। जब ये बताओ, इनके गुरु और इनके भगवान कौन थे? राम। राम की सीता बगल से बैठती थी बिल्कुल सिंहासन में, क्योंकि राम एक बहुत बड़े महान व्यक्ति थे। अगर जीवन में सबसे कोई उत्तम और महान व्यक्ति सुनना है जिस, तो वो राम है। राम से महान व्यक्ति तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ना कभी SC ST का भेद किया, ना जाति अनुसूचित जाति, ना जनजाति। सोचो, पहलिया था, वो था क्या, नाव चलाने वाला केवट, किस जाति का? आ रहा समझ? केवट जाति का था, नीची जाति का था। उसके साथ गया, उसे अपनी अंगूठी दे दी, बड़ी चीज की, ठीक है नहीं? बालू बंदर को सबको लेके आ गया राज्य महल में, आ गया कि नहीं? सुग्रीव को लेके आ गया, विभीषण को लेके आ गया, राक्षस को आ गया कि नहीं? इसका मतलब बहुत महान पुरुष थे, सबको समानता का अधिकार दिया उन्होंने। चाहे अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, जनजाति का, सभी एक घाट पर पानी पीते थे, चाहे शेर हो या फिर, इसलिए बोला जाता राम राज्य। राम का मतलब होता है समानता का अधिकार, वहां महिला और पुरुष बराबरी से बैठे थे। इसलिए रामायण देखना, उनके दरबार में माताएं दिखेंगी बैठने को, लड़कियां दिखेगी, बच्चे दिखेंगे, सब दिखेंगे। वहां ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हो रहा, हनुमान जी तो वहीं नीचे बैठे। इसका मतलब एक नंबर की बेवकूफी है। राम के दरबार में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी परमानेंट संगे रहते, तब कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। लंका में होया है भाई, 1 लाख रावण के 1.25 लाख पूत थे, तो लड़कियां भी होंगी उसकी, फंसियां भी होंगी, वहां कुछ नहीं हुआ। करते हैं तो सही है, करें। बात समझ में आई? तो हनुमान जी ने खुद ऐसा भेदभाव नहीं किया, लोगों ने रचा है। बल्कि हनुमान जी तो सबको माँ दिखते थे, इसलिए वो जानकी को माँ बोलते थे। उन्होंने अंगूठी फेंकी थी कसुक वाटिका में, तो क्या बोला था? ये निशानी है। उन्होंने कहा कि पता नहीं, ये फर्जी भी तो हो सकती है अंगूठी। किसने कहा? सीता माता ने। तो उन्होंने क्या कहा, मैं राम दूत में करुणा निधान की, मतलब मैं राम का दूत है, करुणा निधान की। करुणा का मतलब करुणाधीश सीता माता बोलती थी राम। बात समझ में आई? तब एडजेक्टिव किया था, बात समझ में आई? बात बिल्कुल सिंपल सी थी। समाज में पहले भी ऐसा होता है और आज भी। जैसे कि पहले व्यवस्था एक थी कि जो पहले ब्राह्मण है वो क्या करेंगे, शिक्षा देंगे सबको, पूजा पाठ वो करेंगे। क्षत्रिय क्या करेंगे, शासन करेंगे। वैश्य क्या करेंगे, व्यापार वाणिज्य करेंगे। और शूद्र क्या करेंगे, सबके पैर दबाएंगे, पानी आनी भरना, सब काम करना। सारा समझ में? फिर क्या होगा, फिर जो व्यास ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, उसने कहा तीसरे नंबर पे नहीं, दूसरे या पहले पे हुआ हम तो। अब कमा हम खवा, तुम दो जन को रहा बैठे बैठे, तुम गद्दी पे बैठे और ये बकवास कर रहा है। तो इसने आंदोलन कर दिया, बोले ऊपर दे, हम नीचे नहीं रहे। उसे दिमाग में आया, ये हमें तो ताकतवर है, राजा है, दूसरे पे कैसे पहले पे आए। आ रहा समझ में आया कि नहीं? तो अब संघर्ष छिड़ गया। इसने बोला पैर दबाने का ठेका थुगली ले लिया, रथ दबाने का। पहले ये रथ चलाते थे, लेकिन धनुष बाण नहीं। जो रथ चला सकते धनुष बाण क्यों नहीं चला सकते? अंगराज करने का नहीं, धनुष उठाएंगे हम, रथ चलाने का ठेका थोड़ी है। बाप अधिरथ चला रहा तो पुत्र कर्ण थोड़ी चलाएगा। उसने क्या किया, इन परंपराओं को तोड़ डाला। तो समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत परंपराओं को तोड़ने का बीड़ा उठा लेते हैं और वो अपना नाम अमर कर जाते हैं, यानी महापुरुष बोला जाता है। वो तो वो साधारण व्यक्ति है, लेकिन संघर्ष करते हैं, ठीक है? बात समझ में आए? किसने? कृष्ण क्या चला दीदी?
कृष्ण खुद एक शानदार व्यक्ति थी, कृष्ण एक शानदार इंसान थे, बहुत शानदार। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी पुरानी धारणा को तोड़ दिया। एक गरीब सुदामा को अपना दोस्त बनाया, राजा होते हुए। बात समझ में आई? एक राजा होते हुए, शासक होते हुए, जो युद्ध लड़ सकते थे लेकिन रथ चलाया, जो कि शूद्रों का काम था। इसका मतलब ये भी मानते, इसी कारण लोग इनकी पूजा करते। इंसान थे ये लोग, लेकिन लोग इनकी पूजा करने लगे तो ये भगवान बन गए। अगर आप भी ऐसा कोई काम करते हैं जिससे समाज में बदलाव आता है तो आप भी भगवान बन जाएंगे। जैसे कि महात्मा गांधी, भगवान राम की पूजा हर देश में नहीं होती, महात्मा गांधी की होती। स्वामी विवेकानंद इंसान थे, हर जगह पूजे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेटेस्ट 2015 में मृत्यु हुई। देश के अच्छे पढ़े लिखे घर में उनकी मूर्ति टंगी होगी। अम्बेडकर, है कि नहीं? लेटेस्ट देख लो। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह देख लो। सब भगवान थे क्या? इंसान ही थे, लेकिन काम किया। इसका मतलब भगवान भगवान जैसा कोई कंसेप्ट होता नहीं। इंसान जब महान काम करता है तो भगवान बन जाता है। तो बात समझ में आई कि नहीं? अब देख लो एडजेक्टिव, बात समझ में आ गई। लेकिन जे रिकॉर्डिंग देखेगा वो बीच में जरूर भाग जाएगा। वो कहेगा इंग्लिश में जी कहाँ से सुन। तो गुड, ये क्या है? गुड। ये क्या है? बेटर। ये क्या है? बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, समझ में आई? गुड, बेटर, बेस्ट। ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो तीन प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इनके फॉर्म पता होना चाहिए, कौन से फॉर्म होते हैं। तो गुड, बेटर, बेस्ट। जैसे अगर लिखे हम कौन सा, बैड, बैड, वर्स, वर्स्ट, है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? जैसे अगर लिखें बेल, बेल का मतलब अच्छा, बेल, बेटर, बेस्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं? बैड की जगह तो मिल भी लिख सकते हो, इल, इल वर्स और वर्स। तो कुछ ऐसे होते हैं इनके इस तरीके से क्या बनते हैं, डिग्री। और कुछ की डिग्री अलग तरीके से बनती है। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो क्या आएगा, मोर ब्यूटीफुल। इधर क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है, मोस्ट लगता है कि नहीं? जैसे मैंने लिखा यूजफुल, यूजफुल क्या होगा, मोर यूजफुल। इधर क्या होगा, मोस्ट यूजफुल। होगा कि नहीं? दूसरा तरीका क्या है, कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री, जे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लग करके, सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लग करके क्या बनती है, डिग्री बनती है। लेकिन जब भी ई एस टी लगती है तो उसके पहले ज्यादा लगाना होता है। बात समझ में आई? जैसे कि एग्जाम्पल से देखो, जैसे आपको लिखना है एल्ड, ई एल डी, एल्ड। तो इधर क्या हो जाएगा, एल्डर। इधर क्या हो जाएगा, द एल्डेस्ट। बात समझ में आई? एल्ड का मतलब होता है बड़े भाई को बोलते हैं एल्डर। एल्डर ब्रदर का मतलब होता है बड़ा भाई। अगर घर का हो, सगा भाई हो, घर परिवार में हो तो एल्डर, और दूसरे का हो तो ओल्ड। उसे क्या बोलते हैं, ओल्ड का मतलब होता है बड़ा या बूढ़ा। बात समझ में आई? घर का हो तो एल्डर, और कोई दूसरा हो तो, अपना ही भाई है तो क्या बोलोगे, एल्डर ब्रदर। दूसरे का भाई है तो क्या बोलोगे, ओल्ड ब्रदर। ओल्ड का मतलब होता है बड़ा। बड़ा कैसे होता है, उम्र में, तो उसे बूढ़ा भी बोलते हैं। जैसे यंग, तो क्या होगा, यंगर। और क्या होगा, यंगेस्ट। तो इधर क्या लग जाएगा, बात समझ में आई? जैसे ओल्ड, ओल्डर,
फुल डैश। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब होगा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कुछ वर्ड होते हैं जो सिंपल और यहाँ पर फॉर्म चेंज करके बनाते हैं, है कि नहीं? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें मोर और मोस्ट लेकर बनाते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इसमें कोई चेंज नहीं होता, एक सेम ही रहेगा, है कि नहीं? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ई आर और ई एस टी लगाते हैं, जब भी एस टी लगाती है तो द लगाना पड़ता है, जब भी आर लगाते हैं तो उसके साथ देन लगाना पड़ता है। ये इतनी सी चीज याद रखना है। कुछ एग्जांपल बता दे रहे, बाकी प्रैक्टिस कल कर लें। जैसे कि यू आर स्मार्ट, आप खूबसूरत हो, स्मार्ट। लड़का स्मार्ट होता, लड़की ब्यूटीफुल होती, है क्या नहीं? तो यू आर स्मार्ट कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री, है कि नहीं? पॉजिटिव डिग्री में एक ही व्यक्ति रहता है, सिंगल पर्सन रहता है। बात समझ में आई? और कंपेरेटिव डिग्री में कितने रहेंगे? दो रहेंगे, तभी तो तुलना होगी। यू आर, जैसे मैंने लिखा टॉलर देन मी के आई, कौन सी डिग्री पहले बताओ? कंपेरेटिव डिग्री, सी डी कंपेरेटिव डिग्री। यू आर टॉलर देन मी के आई, और देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव के साथ है, तो मी नहीं बल्कि बताया था। देन के बाद सब्जेक्ट आता है हमेशा, देन के बाद क्या था? सब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, बताया था, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ आए, और देन के बाद सब्जेक्टिव के साथ आता है। ये से रट लो एकदम, याद कर लो। अगर होता है यू आर टॉलर टू मी, तो टू आ जाता, अगर टू होता है प्रीपोजिशन तो मी आ जाता। लेकिन यहाँ क्या है? देन है, तो देन है तो क्या आएगा? आई। जैसे यू आर दी टॉलेस्ट बॉय इन दी क्लास, यू आर द टॉलेस्ट बॉय इन दी क्लास। ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो बच्चा है वो सबसे लंबा है, इससे लंबा क्लास में कोई भी नहीं है। इसका मतलब होता है, ये यूज तब नाम है सुपरलेटिव डिग्री, यानी जो सुपर चीज हो। सुपर का मतलब जिसके समान कोई दूसरी ना हो, यूनिक चीज, तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री। जिसमें दो लोगों की तुलना करना हो, कंपेरेटिव डिग्री। जो सिंपल बात बतानी हो तो पॉजिटिव डिग्री। इसे लिख लो, बाकी कल पढ़ेंगे। नमस्कार।